پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک ترین نام میں آج شب پھر سے آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پھر مجھ خاکسار کو یہ موقع فراہم ہوا کہ میں اس سلسلہ کو کنٹینیو کر سکوں جو گزرے ہفتے شروع کیا تھا، اور وہ تھا کہ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کیسے کریں۔ وقت کی کمی کے سبب سے جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ سب کچھ نہیں کہہ پایا، تو بھی بہت ٹائم ہو گیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سٹڈی کو پھر سے سنیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر اس بائبل سٹڈی کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یا انتظار کیجئے، بہت جلد آڈیو فارمیٹ میں بھی آپ تک یہ بائبل سٹڈیز کے کیسے کی جائے آپ تک پہنچیں گی۔ آج میں اس کے سیکنڈ پارٹ یعنی بائبل سٹڈی کیسے کریں کہ دوسرے ہفتہ پر یعنی دوسرے حصہ پر آپ کے ساتھ مل کر بات کروں گا۔ لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ میں اپنے محدود سے علم کے مطابق کر رہا ہوں۔ یہی سب کچھ نہیں ہے، بہت کچھ اور ہے جس کے ذریعہ سے آپ اور بہتر طریقہ سے بائبل سٹڈی خود کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بائبل سٹڈی میں لیڈ کر سکتے ہیں۔ تاہم میں نے یہ بتایا تھا کہ بائبل مقدس کا پڑھنا، اس کے لیے بہتر لفظ تلاوت کرنا ہے۔ بائبل مقدس کا تلاوت کرنا اور بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا، یہ دو مختلف کام ہیں، بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ دوبارہ سے میں اس پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ آلریڈی کہہ چکا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب کسی کتاب کا یا کسی خط کا یا کسی متن کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے بارے میں مین انفارمیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس میں 2 عہد نامے ہیں، پرانا جس میں 39 کتب ہیں اور نیا جس میں 27 کتب ہیں، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا ادب ان میں پایا جاتا ہے، یعنی شریعت کی کتب عہد عتیق میں ہیں، تاریخ کی کتب ہیں، شاعری کی ہیں، نبوت کی کتب ہیں جن میں انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر ہیں۔ ہم کس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اور میں نے نئے عہد نامے سے متعلق بھی کہا تھا کہ اناجیل عربہ یعنی 4 اناجیل، اور اس کے بعد ہم کلیسیائی تاریخ کی کتاب یعنی رسولوں کے اعمال، اور اس کے بعد خطوط جو کلیسیاؤں کو لکھے گئے اور شخصی طور پر خطوط اور عام خطوط، اور پھر نبوت کی کتاب یعنی بائبل مقدس کی اختتامی جس کو ہم مکاشفہ کی کتاب کہتے ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بائبل مقدس ہفتے میں ایک مرتبہ جب اتوار کو چرچ جائیں یا بائبل سٹڈی کی کلاس ہو تو اسی وقت اس کو ہوا نہیں لگانا۔ کئی لوگ شاید سال میں ایک دفعہ اس کو نکالتے اور جھاڑ کر چرچ لے کر جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ مسیح خداوند نے متی 4:4 میں فرمایا، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اور خدا کے منہ سے نکلنے والی باتیں یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہیں، یعنی بائبل مقدس۔ اور جس طرح ہم جسم کی فکر کرتے ہیں دن میں کم از کم 3 بار، اگر زیادہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات تو ہمارا منہ اکثر چلتا رہتا ہے،
लेकिन जिस्म के अंदर रूह भी है। रूह को कोरमे और बिरयानियों की जरूरत नहीं है। रूह की खुराक रूहानी है और यह खुदा का कलाम है। और सोचना इस वक्त यह है कि मैं जिस्म की तो फिक्र करता और करती हूं, लेकिन मैं अपनी रूह की फिक्र कितनी करता हूं और कितनी ज्यादा कलाम की खुराक मैं अपनी रूह के लिए तैयार करता हूं और इस रूह के लिए मैं ताजगी का सबब बनता हूं। इसके लिए जरूरी है हर रोज खुदा के कलाम की स्टडी के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए, और अगर किसी वजह से नहीं हो सकता तो दिन में एक बार एटलीस्ट, ज्यादा नहीं तो थोड़ा, खुदा के कलाम की भले चंद आयत या एक ही आयत निकाल कर उसको देखा जाए और उस आयत के सियाको सबाक के मुताबिक देखा जाए, स्टडी की जाए। और हम इसी पर तो मुतालिया कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा था, बजाय इसके कि हवा में उंगली घुमाकर बाइबल मुकद्दस ऐसे ही खोलकर जहां पर उंगली पड़ी वहां से पढ़ना है, नो, ये अच्छी बात नहीं है। खुदा के कलाम के साथ इंसाफ नहीं है। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत से बाइबल की आखिरी किताब यानी मकाशफा के आखिरी बाब की आखिरी आयत तक यह सब कुछ हमें पढ़ने और मुतालिया करने के लिए दिया गया है। लिहाजा बेतरतीब नहीं बल्कि बिल तरतीब एक तवातर और एक सिलसिले और एक प्लान के तहत बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किया जाए। पढ़ना, इधर से घुसे और उधर से निकल गए और कहा मैंने बाइबल को खत्म कर दिया, नो, ये ठीक नहीं है। खुदा के कलाम के साथ इंसाफ नहीं है। समझ कर तलावत करना और मुतालिया करना बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। मैंने आपको कुछ टूल्स भी बताए थे कि अगर आप बाइबल मुकद्दस की तिलावत करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं, हमें सब कुछ नहीं आता। बहुत सारी बातें शायद ऐसी उर्दू है, अगर उर्दू में मुतालिया करते हैं तो, जो हमारी समझ में नहीं आ सकता। कई ऐसे अल्फाज हैं और कई लोग ऐसे अल्फाज के ऊपर से गुजर जाते हैं, इसलिए कि खुद भी नहीं समझ और फिर दूसरों को समझाना फिर कैसे होगा, यह जरा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने के लिए, जैसे भाई ने बताया, सबसे पहले जरूरी है कि बाइबल मुकद्दस हमारे पास हो, हाजिर दिमागी जरूरी है, और फिर हमारे पास पेन, पेंसिल और नोटबुक हो, हाजिर दिमागी हो, बाइबल की डिक्शनरी हमारे पास, जिसको उर्दू में कामुसल किताब कहते हैं, वो होनी चाहिए। अच्छा होगा अगर हम स्टडी कर रहे हों, और कलीदल किताब, जो अगर कोई रेफरेंस ढूंढना चाहते हैं तो उस किताब का भी हमारे पास होना ज्यादा अच्छा होगा, ताकि हम बेहतर तरीका से स्टडी कर सकें। और साथ ही साथ अगर तफासिर हमारे पास मुहैया हों, उर्दू में भी कुछ हैं, अंग्रेजी में बहुत हैं, लेकिन ताहम जहां कहीं से तफासिर मिल सकें उनको लिया जाए। और अगर उर्दू के अलावा कुछ जबानें जानते हैं, मसलन अंग्रेजी ज्यादातर लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप बेहतर होगा कि अंग्रेजी की बाइबल साथ रखें और उर्दू की बाइबल मुकद्दस भी साथ, और उधर से एक आयत अंग्रेजी की और उधर से वही आयत उर्दू की। यूं शायद उर्दू में जो इतना क्लियर नहीं समझ पाएंगे, वो अंग्रेजी के पढ़ने से शायद और बेहतर तरीका से हम समझ पाए। यूं एक और फायदा भी होगा, और वो ये कि जो इंग्लिश बिब्लिकल है उसमें भी हमारे इल्म में इजाफा होगा। ये एक अच्छा तरीका है। मैंने शुरू में इसी तरह से ही किया। आज चूंकि थोड़ी सी मुझे आती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि अंग्रेजी की तफासिर साथ रख कर पढ़ूं। कामुसल किताब भी आपको ऑनलाइन फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह
शायद कलीदल किताब भी, लेकिन जो अंग्रेजी जानते हैं उनको गूगल सर्च में जाकर बस लफ्ज डालना है तो उसकी फुल डिटेल वहां पर आसानी मिल सकती है। मैंने इसके साथ साथ यह भी कहा था कि जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो इस मुताले के कई एक उसूल हैं। इन उसूलों को जानना बहुत अच्छा होगा, बल्कि जरूरी होगा। और बाइबल मुकद्दस के मुताले के भी कई एक तरीके हैं, यानी हाउ टू लीड इन ए बाइबल स्टडी, या किस तरह से खुद बाइबल स्टडी करूं, इसके भी कई एक मुनफरद तरीके हैं। मैं उन तमाम तरीकों को मिक्स करके एक ऐसा तरीका तैयार कर चुका हूं और करता भी हूं, आपसे शेयर करता हूं, ताकि जो आपके लिए इजी हो, आसान हो, उस तरीके को आप अपना सकें। मैंने यह कहा था कि एक मुतालिया यह है कि आप पूरी बाइबल का मुकद्दस का मुतालिया तो करना है, लेकिन फिर एक किताब, किसी किताब का मुतालिया हो सकता है। लेकिन उस किताब के मुताले के लिए देखना पड़ेगा कि यह किताब शायरी की है, तारीख की किताब है, नबुव्वत की किताब है, या कैसी किताब है, या खतूत है। यह जानना इसलिए नहीं कि हम आलम बन जाएं, अच्छा होगा कि आलम बने, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब किताब हो कोई तारीख की और वहां हम उसको शायरी के तौर पर ले रहे हों, तो बहुत सारे इस्तिलाही माना हम शायद उन हकीकी माना पर फिट करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि जो शायरी की कुतुब हैं उनको इस तौर पर समझा जाए कि शायरी जो है वो एक पोएटिकल एक ऐसे अंदाज से लिखी गई है जिसमें शायर बहुत सारी और अल्फाज इधर उधर के लेके शायरी में ढालते हैं, ताकि जो हकीकत है, सच्चाई है, वो सामने नजर आ जाए। नबुव्वत की किताबों में भी बाज औकात ऐसी बातें होती हैं जो इशारतन तशबीहन पेश की जाती है, हमें उनको भी समझने की जरूरत है कि वो क्या है और कैसे है। यह किताब के मुताले की बात हो रही है। फिर इसके बाद अहद अतीक और अहद जदीद। अहद अतीक की जब हम बात करते हैं तो यानी यूं समझें कि मसीह से पहले खुदा का कलाम क्या और कैसे कहता है, और बाद इज मसीह खुदा का कलाम क्या कहता है। यूं हम बेहतर तरीका से इन सदाकतों को समझ पाएंगे। उसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि किताब के बाद शायद कोई बाब, किसी बाब का मुतालिया हो, जैसे हम मज़ामीर का मुतालिया करते हैं, कोई ज़बूर ले लिया और उसका मुतालिया करना हो। मैं एग्जाम्पल या मिसाल की तरफ आऊंगा। मैंने गुजरे हफ्ते सिर्फ एक आयत यूहन्ना 3:16 आपकी खिदमत में रखी थी, लेकिन फिर उसके बाद हम आयत का मुताले की तरफ भी आ सकते हैं। मतन के बाद किसी आयत का मुतालिया, मसलन यूहन्ना 3:16 की बात की थी, और देखना यह है कि यह आयत कहां पाई जाती है, मुसन्नफ कौन है, इंसानी मुसन्नफ, वो क्या कह रहा है, किससे मुखातब है, क्यों ये कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है। मतन से और आयत से सवाल करना बहुत जरूरी है, ताकि हम बेहतर तौर पर समझ पाए। हम जो इस वक्त स्काइप आईडी पर और जूम पर या इवन चर्चिज में बाइबल स्टडी लीड करते हैं, जो भी रेफरेंस हमारे सामने हो, उस रेफरेंस यानी उस हवाले को या तो दिया गया होगा कि यहां से आप बाइबल स्टडी करें, या एक सिलसिलावार है और हमारी टर्न पर यह वाला हवाला आया और उस पर हमें बोलना है। घंटे लगते हैं आधा घंटा बोलने के लिए, स्टडी के लिए वक्त लगता है। तो इस स्टडी के लिए
टाइम निकालना पड़ता है। ये खुदा का कलाम है और ये रूहों की निजात का मामला है। लोग ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे अपने पेशेंट्स से लेकर जिसकी बाबत वो जानते हैं ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो नीम हकीम के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर नीम हकीम मेडिसिन दे तो कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बिन मुतालिया के कोई ऐसी बात कह दें जो बाइबल मुकद्दस के बाकी मतन के साथ टैली नहीं होती और सुनने वाले हमारी बाबत यह समझेंगे कि ये खुदा का खादम है, ये पादरी है, ये फलां है, जो कुछ इसने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है, और पॉसिबल है कि वो गलत माना ले रहा हो। इसलिए लाजिम है कि हम रूहों के साथ भी वफादार हों और उनके लिए अच्छी तरह से हम काम करने वाले हों, उनकी बेहतरी के लिए उनकी मदद करने वाले हों, और इस तौर पर हम दूसरों की बेहतरी के लिए काम करें ताकि वो खुदा के कलाम को अच्छी तरह से समझ पाएं। और ये तभी होगा जब मैं और आप बेहतर तरीका से समझेंगे। तो लाजिम है कि हम मतन से, मसलन कोई ज़बूर है, जिस ज़बूर की किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं, तो फिर ज़रूर है कि उस मतन का हम मुतालिया करने से पहले एक दो बातें ज़रूरी तौर पर अच्छी तरह जान लें। एक बात तो यह है कि जो कोई भी मतन है हम उससे सवालात करें, जैसे मैंने पहले कहा कि यह कौन सा असलूब है, कौन सा अदब है, शायरी, नबूवत, तारीख, अनाजील, खतूत या कोई और। उसके बाद मसलन यूना की किताब ले लेते हैं, नबूवत की किताब है, ओके, यूना की किताब जी किसने लिखी है? इंसानी पहलू के एतबार से वो यूना की ही है, अगरचे खुदा के कलाम के पीछे जो असल मुसन्नफ है वो खुदा बजाते खुद है, कोई और नहीं है। खुदा बजाते खुद अपने कलाम का मुसन्नफ है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद खुदा ने गोया यूना की बाबत हम देखते हैं, उसने लिखा ये नबूवत का कलाम ताकि उस नबूवत के कलाम के जरिया से हम खूब फैज़याब हो सकें। यह जानना जरूरी है। फिर यह कि इस किताब के लिखे जाने के पीछे मकसद क्या है, किस मकसद के तहत यह किताब लिखी गई है। इस किताब के जो मुखातिबीन हैं, जिनसे मुखातिब हुआ जा रहा है, वो कौन है? जिनको मुखातिब होकर यह बात की गई है वो लोग कौन हैं? इस बात का भी जानना बहुत जरूरी है, मुखातिबीन। फिर यह किताब कब लिखी गई, उस वक्त हालात क्या थे, तारीख के एतबार से कौन सी सन में लिखी गई, यानी मसीह से पहले या मसीह के बाद, इसकी बाबत और क्या है, कहां से लिखी गई और उस जगह की बाबत जहां से लिखी गई। इन बातों के बारे में भी हमारे लिए जानना बहुत फायदेमंद होगा दूसरे लोगों से शेयर करने के लिए, ताकि वो लोग भी इन सच्चाइयों को और इन हकायक को बेहतर तरीका से समझ सकें। यह भी कि इसमें कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। और यह भी जो इस किताब को लिख रहा है उसके पीछे लिखने का मकसद क्या था, क्या उसके जहन में था, रूहुल कुद्स ने क्या उसके जहन में डाला कि यह किताब क्यों लिखी गई, उस वक्त हालात क्या थे। हम जब ज़बूर की किताब का मुतालिया इन दिनों में कर रहे हैं तो हमने खूब एक एक बात पर रोशनी डाली, गौर किया और देखा, सबों ने एहसन तरीके से बाइबल स्टडीज में लीड किया कि इसका मुसन्नफ कौन है, इसका क्या मतलब है, मीरे मुगन्नी कौन है, और यदूतून कौन है, और हिमान कौन है, आसफ कौन है। बहुत सारी बातें हैं
जिन पर हमने मिलकर बात की है, और फिर साथ साथ ये कि आज मेरे लिए क्या सबक है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और ये शख्सी मुताले की बात हो रही है, और उसके साथ साथ ये भी कि अगर ये मेरे लिए सबक है तो यकीनन उनके लिए जिनको मैं बाइबल स्टडी में लीड करूंगा उनके लिए भी ये फायदामंद होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि जो किताब या बाब मैं मुतालिया कर रहा हूं उसमें कौन से कुलीदी अल्फाज हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनको बार बार पेश किया गया, या ऐसे अल्फाज मसलन ज़बूर 136 एक आयत को कई बार दोहराया गया है और आप जानते हैं वो क्या है। 136 ज़बूर में कई बार, तो हमारे लिए यह जरूरी और अहम तरीन बात है कि हम इस हकीकत को जानें कि अगर कोई बात दोहराई जा रही है तो वो क्यों दोहराई जा रही है। अगर कोई लफ्ज वहां पर आया है तो उस लफ्ज के पीछे मतलब क्या है, कौन कौन से जुमले बार बार दोहराए गए और क्यों दोहराए गए। अगर कुछ अल्फाज दोहराए जा रहे हैं तो वो अल्फाज क्यों दोहराए जा रहे हैं। ये किसी किताब के मताले के लिए, किसी मतन के मताले के लिए और किसी आयत के मतालिया के लिए बहुत अहम तरीन टूल है कि खुदा इस मतन में, इस हवाले में क्या कह रहा है, उसका मकसद क्या था कहने का, और जिस शख्स के जरिया से उसने इसको तहरीर करवाया वो असल में खुदा की मर्जी को किस तौर पर दूसरों से पेश करता है। और जब हम ये इन मतन से सवाल करेंगे कि कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या कह रहा है, लिखने का मकसद क्या था, किस से बोल रहा है, कब उसने बात की, हालात क्या थे, भले एक ही आयत क्यों ना हो, जब सवालों की बौछार हम उस एक आयत पर बरसाएंगे तो फिर हमें बहुत सारे जवाब मिलेंगे, और इसके लिए स्टडी की जरूरत होगी जवाब ढूंढने के लिए। और फिर जब आप उसी एक ही आयत की बाइबल स्टडी करवाएंगे तो आपको खुद खूब बरकत मिलेगी, और उन लोगों को भी जिनकी आप रहनुमाई कर रहे हैं। काम मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा, जैसे गुजरी दफा मैंने कहा था, कि जो जो आप इसको गहरे में उतरते चले जाएंगे तू और गहरी बातें आपको मिलती चली जाएगी, और यूं खुदावंद के नाम को जलाल और इज्जत मिलता चला जाएगा। इसके साथ साथ मैंने यह भी कहा था कि किसी करदार की बाइबल स्टडी, जब मैं करदार कहता हूं तो अच्छा और बुरा की बात नहीं है। जब मैं कैरेक्टर स्टडी कहता हूं, कैरेक्टर बाइबल स्टडी, तो इसका मतलब कोई शख्सियत, पर्सनैलिटी, नू, अब्राहम, कायन, हाबल, जितने भी बाइबल मुकद्दस में आस्तर है, और उनसे मुतालिक फुल डिटेल बाइबल मुकद्दस से मुहैया की जा सकती है। किताब का मुतालिया, मतन का मुतालिया, किसी आयत का मुतालिया, और फिर किसी कैरेक्टर का। मती की बाबत, पौलुस की बाबत, यूहन्ना कौन था जिसने इंजील भी और 3 खतूत भी और मुकाशफा की किताब भी लिखी। और यूहन्ना की बाबत जानने के लिए हमें काफी रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे शुरू से बाइबल मुकद्दस खोली, इब्तदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, खुदा खालिक है, और बस अगली आयत में चले गए, और खुदा का रूह पानी की सतह पर, जी पानी था और समुंदर थे और खुदा का रूह जुम्बश करता था। कौन सा रूह, किस रूह की? खुदा का रूह। पानियों की सतह, कौन से पानी? जमीन और आसमान पैदा की या बनाई या खल्क की, या ये क्या है, किसने की, कब की? ओ, बहुत कुछ है इन बातों के जानने में। तो बाइबल स्टडी ये नहीं है कि आयत को पढ़ा जाए,
मेरे ख्याल में इतनी सारी बातें आम लोग जानते हैं। मसलन खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, कौन नहीं जानता? जानते हैं। लेकिन कौन बोल रहा है? वो क्यों कह रहा है कि खुदावंद मेरा चौपान है? चौपान क्यों कह रहा है? बादशाह क्यों नहीं कह रहा? मेरा शेर है, ये क्यों नहीं कह रहा? क्या रीजन है? और वो अपने आप को क्या समझता था जब उसने ये कहा खुदावंद मेरा चौपान है? और उसके बाद वो कह रहा है हरी हरी चरागाहें और पानी के चश्मों की भी बात कर रहा है और उसकी लाठी का भी जिक्र करता है। ये क्या कह रहा है? जबूर नवीस खुदा को अगर वो चौपान कह रहा है, खुदा मेरा चौपान है, तो वो अपने आप को क्या समझता है? क्या वो अपने आप को भेड़ तो नहीं समझता? ऑफ कोर्स वो अपने आप को भेड़ समझता है। खुदावन मेरा चौपान है। और फिर आगे जबूर को देखा जाए तो गोया यूं कहना चाहिए कि जबूर 23 भेड़ की आवाज है। और अगर हम चौपान की आवाज सुनना चाहें तो हम यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 10वें बाब में जाकर भेड़ की आवाज को सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आयत से सवाल करने से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। याद कीजिए, इन उसूलों का अपनाना जरूरी नहीं कि हम बाइबल डॉक्टर हों तो तभी हम इन उसूलों को अपना सकते हैं। यह बहुत इजी उसूल है, आसान है। तालीम कम हो या ज्यादा काम करेंगे ये उसूल, बशर्ते कि इनका अतलाक इसी तौर पर दौराने बाइबल स्टडी हम करने वाले हो सकें। फिर इसके अलावा किसी जगह का भी मुतालिया हो सकता है। स्टडी का एक और भी पहलू है, किसी जगह का मुतालिया करना बाइबल मुकद्दस में। फर्ज करें हमारी जो स्काइप आईडी पर बाइबल स्टडी होती है, किताबों के बाद अगर कहा जाए अच्छा जी अब हम ऐसा करेंगे कि मुख्तलिफ शहरों या बाइबल में पाए जाने वाले मकामात की स्टडी करेंगे। यरूशलेम हो गया, कनान हो गया और यरीहू हो गया, गलील हो गया, मुख्तलिफ मकामात, हारान हो गया, अदन हो गया। इन मुख्तलिफ मकामात की स्टडी का भी एक अपना ही मजा है और एक अपनी ही बरकत है। बाइबल मुकद्दस के इख्तिताम पर अगर हम देखें तो कुछ नक्शे दिए गए हैं। उर्दू में, अंग्रेजी में ज्यादा है, उर्दू में कुछ नक्शे दिए गए हैं। इनमें उन जगहों के नाम और उनके नक्शे यहां पर मौजूद हैं और कुछ तो हेल्प यहां से आप ले सकते हैं।